The Waqf Amendment Bill has officially become law following President Draupadi Murmu's assent, sparking a wave of reactions across the political and religious spectrum. The bill, which aims to reform the Waqf Act of 1995, has been hailed by supporters as a necessary step towards upholding constitutional principles, while critics argue it undermines minority rights and religious autonomy. Maulana Yusuf Abbas, General Secretary of the All India Shia Personal Law Board, expressed strong disappointment over the development and said that it is a matter of great regret that it has got approval from the President as well. Maulana Abbas informed that they will sit with their legal cell and based on their advice, they will move forward, indicating possible legal recourse. In contrast, BJP MP Konda Vishweshwar Reddy, speaking from Hyderabad, welcomed the bill's passage. Reddy said that above the High Courts, the Civil Courts and the Supreme Court, the Constitution is the supreme. The amendments in the Waqf Bill of 1995 by Congress and later in 2013 were about the courts, the judiciary, the laws and even the Constitution. It was long overdue in a secular country like India. No single religion can have rights beyond the Constitution, and unfortunately, such amendments and laws were made in the past. The bill passed by both houses of parliament has triggered a broader debate about the role of religious endowments in a secular state and the balance between community rights and constitutional equality. Meanwhile, Jagdambika Pal, BJP MP and chairman of the Joint Parliamentary Committee on the bill, defended the amendment and criticized the opposition for its silence during the legislative process. He said that if it was an unconstitutional law, then Rahul Gandhi should have said in Parliament clause by clause that the amendment being made is unconstitutional. He did not give any suggestion on this, did not give any argument. Neither Priyanka gave any argument nor Sonia Gandhi gave any argument in the Rajya Sabha. For the first time since independence, such a long discussion took place on a bill in the Lok Sabha or Rajya Sabha. लेकर के लगातार विरोध चल रहा था, जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, अब देर रात की बात की जाए तो अब राष्ट्रपति की ओर से भी इसको मंजूरी मिल रही है। तो अब इसको लेकर के क्या कुछ कदम रहने वाले? देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तेजी से वक्फ बिल पास हुआ कि एक दिन लोकसभा में पूरी रात बहस होती रही, 2 बजे रात को। फिर राज्यसभा में भी यही हाल रहा और राष्ट्रपति के पास जाके फौरन मंजूरी नहीं मिलती है। उसको देखा जाता है, उसको परखा जाता है, उसके लीगल एक्सेप्ट देखे जाते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि राष्ट्रपति महोदया से भी उसको मंजूरी मिल गई है। अब देखते हैं अपने लीगल सेल को बिठा के कि हमारी लीगल सेल बैठ के क्या कहती है और हमारी लीगल सेल जो भी राय देगी उसके ऊपर अमल किया जाएगा। जिस तरह से बात की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता करने के लिए, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी कहीं ना कहीं बंद हो गया है। तो अब अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर उतरने की बात कही जा रही थी? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही थी, कानून बन गया है, तो लिहाजा आप कानून के जानकारों से पूछना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो सकता है। इसीलिए हमारी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल सेल है और हमारी लीगल सेल बाकायदा इसके ऊपर विचार कर रही है और उम्मीद है कि आज से कल तक के कोई रास्ता निकल के आएगा। Above the high courts, the civil courts, the high courts and the Supreme Court and the Constitution. Constitution is the supreme. The amendments, the Waqf Bill of 1995 by Congress and later on by 2013 was above the courts, the judiciary, the laws and even the Constitution. It was long overdue. In a secular country like India, no single religion can have rights beyond the Constitution. And it is unfortunate that such amendments and laws were made in the past. I am so happy today that the bills passed in the Lok Sabha and the Rajya Sabha got the President's assent and became the law of the country. It stands part of the Constitution today. Thank you. Thank you. अगर असंवैधानिक कानून था तो देश की पार्लियामेंट के फोरम पे राहुल गांधी को क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो आया था सरकार के द्वारा उस पे उन्होंने कोई न सुझाव दिया, न कोई आलोचना किया, न कोई अपने तर्क दिए, न कोई तर्क प्रियंका ने दिया और न कोई तर्क
राज्यसभा में सोनिया गांधी ने दिया। केवल ये कह देना, लोकसभा के ऊपर बयान दे देना उनका, सोनिया गांधी का, कि बुलडोज करके आजादी के बाद से 2:30 बजे रात तक, 11 बजे दिन से 2:30 बजे रात तक लोकसभा में चर्चा हुई संशोधन विधेयक पर, और 3:30 बजे 4 बजे रात तक राज्यसभा में चर्चा हुई। आजादी के बाद से अब तक रिकॉर्ड है, इतिहास है कि किसी विधेयक पे इतनी लंबी चर्चा लोकसभा राज्यसभा में नहीं हुई। तो इतनी चर्चा के बाद लोकसभा और राज्यसभा में देश के महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, इतने राज्यों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गई, इतने लोगों से कंसल्टेशंस, डिस्कशंस, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इतने विटनेसेस से मिले, इस्लामिक स्कॉलर हों, वाइस चांसलर हों, हर स्टेट के बार काउंसिल के लॉयर्स हों, फॉर्मर जजेज हों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके जमायत उलमा हिंद से लेके ज़कात फाउंडेशन से लेकर के तमाम मुस्लिम तंजीम से, पसमानदा महासमाज से, मुस्लिम मंच से, कितनी तंजीम से मिले, इतने बड़े डिस्कशन से, इतने लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट दिया। और मुझे खुशी है कि पहली बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो हम सभी सदस्यों ने मिल करके 428 पेज की रिपोर्ट दिया, उसमें जो हमने रिकमेंडेशंस किया, जो उसमें हमने अमेंडमेंट सुझाए थे, सरकार ने उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया। और जो पहले 8 अगस्त को विधेयक लेकर के आए थे, सरकार आई थी, और जब हमने जो रिकमेंडेशन दिया, फिर सरकार ने उसके अनुरूप अमेंड करके, इस बात को श्री किरण रिजिजू जी ने सदन में कहा कि हम चाहते तो जो बिल हम अमेंडमेंट करके लाए थे उसको पास करा लेते, हमारा लोकसभा राज्यसभा में बहुमत था, लेकिन खुद हम चाहते थे कि एक ट्रांसपेरेंट बिल बने, पारदर्शी बने और चर्चा के बाद बने पूरे देश की। और करीब 97 लाख मेमोरेंडम्स आए, उसको हमने स्क्रूटनाइज किया, उस पर गौर किया। तो शायद किसी कानून को बनाने में इतनी बड़ी प्रक्रिया आज़ादी के बाद पहली बार हुआ, और ये मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है, जो देश के एक बड़ी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, गरीबों को, पसमानदा को, महिलाओं को, ख़वातीन, बच्चों को एक बहुत बड़ा सुधारवादी कदम होगा और फ़ायदा देगा।